હા, લાસ્ટ ક્લાસમાં આપણે જોયું કે આનંદ અંશનો તિરોભાવ થાય તો જીવ પર તેની અસર શું થાય છે, અને તેના પછી ઐશ્વર્યાદિ એટલે અલૌકિક જે ગુણોનો તિરોધાન થાય છે તેના પછી પ્રભુ જે પ્રકારનું ફળ આપવાની જે ઈચ્છા કરે છે તે રીતે જીવોનું વરણ કરે છે ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારથી અલગ અલગ માર્ગોમાં. હવે ત્યારબાદ પંચપર્વ અવિદ્યાનો સંબંધ. જીવોનું વરણ થઈ ગયા બાદ પ્રભુની જ ઈચ્છાથી જીવોને અવિદ્યાનો સંબંધ થાય છે. અવિદ્યા એ માયાનું જ એક કાર્ય છે. આપણે પ્રપંચ વિવેકમાં પણ આગળ જોયું હતું કે માયાના બે કાર્ય છે, આચ્છાદિકા અને અન્યથા પ્રતીતિ. એક ગેરસમજ પેદા કરવું, અને જો પ્રતીતિના લેવલ પર તે માયા ભ્રમ કરે છે તો એ અન્યથા પ્રતીતિ કહેવાય છે. એ જ માયાના રોલમાં અવિદ્યા પેદા કરવાનું હોય છે જીવો પર. અવિદ્યાના સંબંધથી જીવને અહંતા, મમતા, જન્મ, મરણ, પાપ, પુણ્ય વગેરેનું બંધન થાય છે. આ બધું જે લૌકિક બંધન છે એ અવિદ્યાના કારણે જીવને થાય છે. આ બંધનનું કાર્ય અવિદ્યા 5 પ્રકારના અધ્યાસો દ્વારા કરે છે. અંતઃકરણાધ્યાસ, પ્રાણાધ્યાસ, ઇન્દ્રિયાધ્યાસ, દેહાધ્યાસ અને સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ. અધ્યાસ એટલે ભ્રમ, એટલે કે ભ્રાંતિ. આ 5 અધ્યાસને પંચપર્વ અવિદ્યા પણ કહેવામાં આવે છે. હવે તેને ક્રમશઃ સમજીએ. પહેલું અંતઃકરણાધ્યાસ. અંતઃકરણ એટલે આપણા અંદરના જે બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ હોય એ. ચિત્ત, અહંકાર, બુદ્ધિ અને મનના સમૂહને અંતઃકરણ કહેવામાં આવે છે. ચિત્ત એટલે સંગ્રાહિકા અંતઃકરણની વૃત્તિ એટલે સ્ટોરેજ. અહંકાર એટલે આપણામાં જે અહમ હોય છે તે. બુદ્ધિ એટલે નિશ્ચયકારિકા અંતઃકરણની વૃત્તિ એટલે આપણે જે બધું નિશ્ચય કરી શકીએ તે. મન એટલે સંકલ્પ વિકલ્પ કરવાની અંતઃકરણની વૃત્તિ. આ 4થી આપણું અંતઃકરણ બને છે. અંતઃકરણ જડ હોય છે, તેમ છતાં અંતઃકરણનો સંબંધ જીવ સાથે થવાથી જીવ પોતાને અંતઃકરણ રૂપ સમજવા લાગે છે. આ જીવનો પહેલો ભ્રમ કે અધ્યાસ છે. એટલે માયાથી સૌથી પહેલો જીવને ક્રમશઃ જે અધ્યાસ થયો છે અંતઃકરણ રૂપે અધ્યાસ થઈ રહ્યો છે જીવને. અંતઃકરણાધ્યાસને કારણે જીવ પોતાને સતત એટલે સારું કે ખોટું કર્મોનો કરતા તેમજ સતત ફળોનો ભોગતા પણ સમજવા માંડે છે. આટલું પૂરું લઈ લે સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ સુધી. હેલો, હા સંભળાય છે. પ્રાણાધ્યાસ. હેલો, હા કન્ટિન્યુ. સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ સુધી કરી લે. પ્રાણ પણ જડ હોય છે, પ્રાણ સાથે સંબંધ થતા જ જીવને પોતે પ્રાણ છે તેવો ભ્રમ થઈ જાય છે. આ જીવોનો પ્રાણાધ્યાસ છે. ઇન્દ્રિયાધ્યાસ. ઇન્દ્રિયો પણ જડ હોય છે, ઇન્દ્રિયોથી અનુભવાતા વૈશ્વિક સુખોને કારણે જીવ પોતાને સુખી અથવા દુઃખી માની લેવાની ભ્રમણામાં ભોળવાઈ જાય છે, અને ઇન્દ્રિયાધ્યાસ કહેવામાં આવે છે. આપણા ઇન્દ્રિયોના
દેહાધ્યાસ નરી આંખે દેખાતા આપણા સ્થૂળ શરીરને દેહ કહેવામાં આવે છે. દેહ પણ જડ હોય છે, પરંતુ જીવની સાથે તેનો સંબંધ થવાથી જીવ પોતાને જ દેહ સમજીને દૈહિક સુખ દુઃખોને પોતાનું સુખ દુઃખ માની લેતો હોય છે. આ જીવોનો દેહાધ્યાસ છે. હવે આ જેટલા બી 4 અધ્યાસો છે એમ કહેવામાં છે કે બધા જડ છે. તો એનું કારણ એવું હોઈ શકે કે પ્રકૃતિમાંથી તેઓ પ્રગટ થયા છે બધા, એટલે તેઓ જીવ છે. એટલે પ્રભુના સદંશ રૂપે આ 4 અધ્યાસ છે. અને હવે સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ. પોતે બ્રહ્મનો અંશ છે એવો પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી જવું તે સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ કહેવામાં આવે છે. એટલે આપણું જે સ્વરૂપ છે, આપણી આત્માનું જે સ્વરૂપ છે કે મેં બ્રહ્મ કા અંશ છું, એ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ માયાના કારણે. જેમ જેમ પૂર્વોક્ત અધ્યાસોને વળગતા જાય છે તેમ તેમ તે પોતાના સ્વરૂપને વધુ ને વધુ ભૂલતો જાય છે. પરિણામ પોતાના અંશી બ્રહ્મથી વધુ ને વધુ દૂર થતો જાય છે. એટલે આ જેટલા બી 5 પ્રકારના પંચપર્વા અવિદ્યાના સંબંધથી એ જેમ જેમ ક્રમશઃ એક લાગતું જાય છે જીવને, એમ પ્રભુથી એટલો ને એટલો જ દૂર જતો જાય છે. એટલે જ એને પંચપર્વા અવિદ્યા કહેવામાં આવે છે. 5 ગાંઠો વાળી અવિદ્યા. અને આ જ્યારે માયા એક ગાંઠ બાંધતી જાય છે જીવો સાથે, એમ તે બ્રહ્મથી દૂર થતું જાય છે. लास्ट हमने मैंने जैसे पहले भी कहा था राजा આગળ લઉં ना આટલું જ, પછી કરશું આગળ. लास्ट क्लास में जैसे मैंने कहा था कि ये जो पूरा सब्जेक्ट जीव विवेक में डेवलप हो रहा है वो जीवात्मा की उत्पत्ति से लेकर और प्रेजेंट कंडीशन में हम अपनी जीवात्मा को अपने शरीर के अंदर जैसे देखते हैं उस कंडीशन तक क्या किन किन प्रोसेसेस में वो जीवात्मा आती है और किस तरीके से उसके स्वरूप उसका डिटीरियोरेट हो जाता है, वो पूरा क्रम यहाँ समझाया जा रहा है. इसलिए सबसे पहले हमने वो बात देखी थी कि भगवान में से जीवात्मा व्युच्चरित होती है. अग्नि में से जैसे उसके तिनके निकलते हैं ऐसे ब्रह्म में से जीवात्मा प्रकट होती है. अब जब जैसे जो अग्नि में जो गुण होता है वही गुण उसके तिनके के अंदर भी होता है, परंतु कुछ देर तक जब अग्नि का संपर्क नहीं रह जाता है तब धीरे धीरे वो तिनका ठंडा होके और फिर अपने गुण को प्राप्त कर लेता है. वो सामान्य बाहर का जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है उस पे आ जाता है. उसी तरह जीवात्मा ब्रह्म में से जब अलग होता है तब तक सच, चित और आनंद ये तीनों गुणधर्म उसके अंदर प्रकट होते हैं, परंतु क्योंकि भगवान लीला चाहते हैं इसलिए स्वेच्छा या उसमें से उस आनंद अंश को तिरोहित कर देते हैं. और आनंद अंश के तिरोधान की वजह से जीवात्मा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो हमने लास्ट देखा था कि ऐश्वर्य, वीर, यशस्वी, ज्ञान और वैराग्य इतने गुण जीवात्मा के जो है वो तिरोहित हो जाते हैं. उसके बाद जो विषय है वो वर्ण का था कि भगवान उसके बाद उन जीवात्माओं का वर्ण करते हैं पुष्टि, मर्यादा और प्रवाह. इन 3 मार्गों में, इन 3 डिविजन्स में जीवात्माओं का वर्ण करते हैं. अर्थात भगवान जीवात्मा को क्या फल देना चाहते हैं और जीवात्मा की नियति क्या होगी वो भगवान डिसाइड करते हैं. आज जो सब्जेक्ट है वो पंचपर्वा अविद्या का संबंध. श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि भगवान की 2 शक्ति हैं, विद्या और अविद्या. आगे जाके विद्या शक्ति का आएगा, अभी के लिए हम सिर्फ अविद्या शक्ति का परिचय प्राप्त कर रहे हैं. तो अविद्या जो है वो भगवान की एक शक्ति है, माया भी कह सकते हैं उसे. वो माया भगवान की एक शक्ति है और भगवान अपनी इच्छा से उस जीवात्मा को माया शक्ति का संपर्क करवाते हैं और उस माया शक्ति का प्रभाव जीवात्मा के ऊपर ऐसा पड़ता है कि जीवात्मा इन 5 अध्यासों में बंध जाता है. अध्यास का अर्थ होता है भ्रांति, इल्यूजन या भ्रम.
अर्थात जो सच्चा नहीं है उसका किसी और प्रकार से ज्ञान होना, वस्तु जैसी है उसका ऐसा ज्ञान न होकर किसी अन्य प्रकार से उसका बोध होना, इसे हम अध्यास कहते हैं, भ्रांति कहते हैं, भ्रम, इल्यूजन कहते हैं। ये 5 प्रकार के भ्रम जीवात्मा को अविद्या का संपर्क होने से होते हैं। अर्थात इसे हम सरल भाषा में कहें तो अविद्या शक्ति के ये 5 कार्य हैं, और इन 5 कार्यों के कारण जीवात्मा जो है वो अपने स्वरूप को भूल जाती है। उसमें सबसे पहला जो है वो अंतःकरणाध्यास। जानवी ने जैसे बताया, ऐसे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनके समूह को अंतःकरण कहते हैं। उसकी डेफिनेशन उसने बता दी, इसलिए उसे मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो वो अंतःकरण जो है वो जीवात्मा के क्लोजेस्ट है। ये 5 जिस क्रम में बताए गए हैं उसी क्रम में जीवात्मा को वो अध्यास प्राप्त होते हैं। इसलिए सबसे पहला जो अध्यास होता है वो अंतःकरणाध्यास होता है। और अंतःकरणाध्यास के कारण जीवात्मा को ऐसा लगता है कि मन में जो भी इच्छाएं हो रही हैं वो मुझे इच्छा हो रही है, बुद्धि जो भी डिसीजन लेती है वो सब डिसीजन मेरे लिए हुए डिसीजन है, या चित्त जो है वो उस डिसीजन को कंफर्म करता है तो ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तो ये प्रकार की जो भ्रांति है वो जीवात्मा को हो जाती है। और अहंकार की वजह से जीवात्मा ये समझती है कि ये मैं हूँ और ये शरीर ही मेरा गुण है वगैरह। तो ये इन कार्यों की वजह से जो चीज हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है उन चीजों को जीवात्मा अपने आप के साथ जुड़ा हुआ मान लेती है अध्यास के कारण। इसे ही हम भ्रांति कहते हैं। अर्थात जैसे जीवात्मा का कॉन्स्टिट्यूशन हम पहले देख चुके हैं कि जीवात्मा जो है वो ब्रह्म का चिदंश है, ये उसका फॉर्म है, ये उसका शुद्ध स्वरूप है। परंतु अब जीवात्मा को अंतःकरण के संपर्क में आने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, अंतःकरण ही मेरा सच्चा स्वरूप है और मैं अंतःकरण हूँ। इसलिए मन में जैसे हमें ऐसा लगता है कि इस अध्यास को समझने के लिए ऐसा उदाहरण समझो कि हमें हमारे हाथ पैर दर्द करते हैं तो हमें दुख होता है, परंतु किसी अन्य व्यक्ति को कोई दुख हो तो हम उस दुख को उतना स्ट्रांगली फील नहीं कर सकते हैं जितना स्ट्रांगली वो हमारे शरीर में जब हो तब हमें फील होता है। तो अपना और पराया ये जो फीलिंग है उसकी वजह से हमारे सुख दुख की मात्रा जो है वो बदल जाती है। उसी तरह आत्मा यदि ये समझे कि नहीं, मैं अंतःकरण नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, तो उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमें ऐसा ही लगेगा कि हमें थोड़ी ना कुछ हो रहा है, ये तो किसी और को हो रहा है। परंतु जब जीवात्मा इन्हें अपना स्वरूप समझ लेती है तब जीवात्मा को ये प्रॉब्लम होती है कि उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। इसीलिए हमारे मन में जो भी इच्छाएं होती हैं तो आत्मा को ऐसा लगता है कि ये सब इच्छा मुझे हो रही है और ये इच्छाएं सब पूरी होनी चाहिए। परंतु दूसरे के मन में इच्छा होती हो तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि मुझे ये मेरी ये इच्छा है। ये फर्क है यहाँ। दूसरा जो है वो प्राणाध्यास है। प्राण भी जो है वो जड़ होते हैं। ओवरऑल अंतःकरण, प्राण, इंद्रिय और देह, ये चारों की चारों जड़ हैं। हमारे शरीर में आत्मा है, उसके बाहर सूक्ष्म शरीर है, उसके बाहर स्थूल शरीर है। अंतःकरण, प्राण, इंद्रिय, ये तीनों की तीनों सूक्ष्म शरीर के कॉन्स्टिट्यूशन है। अर्थात इन्हें देखा नहीं जा सकता है, ये इंद्रियातीत हैं। मतलब जब हमारे शरीर का हम पोस्टमार्टम करते हैं तो हमें उसमें मन नहीं दिखाई देता है, हमें उसमें इंद्रियां नहीं दिखाई देती हैं, हमें उसमें बुद्धि नहीं दिखाई देती है। फिजिकल ब्रेन और बुद्धि, इन दोनों में फर्क है। बुद्धि जो है वो आध्यात्मिक है और फिजिकल ब्रेन जो है वो तो हमारी बॉडी का एक पार्ट है। उसे हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे अब हम हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक शरीर का हार्ट दूसरे शरीर में चला जाता है, और कभी कभी अब तो ये भी टेस्ट चल रहे हैं कि हम पशुओं के हृदय को भी मनुष्य के शरीर के अंदर लगा पाए, क्योंकि उसका काम तो सिर्फ ब्लड को पंप करना है, तो वो किया जा सकता है। आर्टिफिशियल हार्ट भी लगा सकते हैं। उसी तरह बुद्धि भी एक फिजिकल ऑर्गन है। अब मेरा फिजिकल ब्रेन है वो किसी और की बॉडी में डाल देने से मेरी बुद्धि शक्ति किसी और में चली नहीं जाती है। तो उसका तात्पर्य ये है कि हम जिसे बुद्धि कह रहे हैं, हम जिसे प्राण कह रहे हैं, हम जिसे मन कह रहे हैं, ये सब
आध्यात्मिक लेवल के हैं और अतीन्द्रिय हैं। इन्हें हमें फिजिकल बॉडी के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। और उसके बाहर हमारा एक स्थूल शरीर होता है जो मांस से, हड्डियों से, खून से, मसल से बना हुआ है। ये 3 पोर्शन है। उसमें दूसरा जो है वो प्राण है। प्राण का अर्थ है प्राण वायु। प्राण के 5 प्रकार शास्त्र में बताए गए हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। जिन्हें आयुर्वेद का थोड़ा नॉलेज हो तो उन्हें पता होगा कि 5 प्रकार के प्राण वायु होते हैं जिनका प्रवाह हमारे शरीर के अंदर चलता रहता है। सिर्फ हम जो सांस लेते हैं वो प्राण वायु नहीं होती, उसके अलावा 4 और वायु हमारे शरीर में होती है। तो उनके इम्बैलेंस की वजह से बॉडी जो है वो शरीर के अंदर रोग आते हैं, ऐसा आयुर्वेद का मत है। तो वो प्राण है। तो अभी हम और 4 प्रकार के प्राणों को ना कंसिडर करके सिर्फ प्राण वायु को, हमारे श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया है उन्हें कंसिडर करें। तो हम जब हमारी सांस रुक जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी। परंतु हमारी मृत्यु आत्मा के चले जाने पर होती है, प्राणों के रुक जाने पर नहीं होती है। परंतु हम सांस बंद कर देते हैं या किसी कारणवश ऑक्सीजन हमारी बॉडी को नहीं मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम मर जाएंगे। परंतु हमारे शरीर की मृत्यु या हमारे में से चेतन तत्व जो है उसकी निष्क्रियता आत्मा के जाने पर होती है। प्राण जो है वो सिर्फ हमें जीवित होने का एहसास दिलाता है कि हम जिंदा हैं। जैसे भागवत जी में ध्रुव जी के प्रसंग में आता है कि उन्होंने अपने सांसों को रोक लिया जब वो तपस्या कर रहे थे तब। तो ऐसे जैसे छोटा मोटा अभ्यास हम प्राणायाम में करते हैं या उससे भी थोड़ा ज्यादा लेवल का अभ्यास हाइबरनेशन में जाके फ्रॉग कर लेता है, या और भी ज्यादा अभ्यास कहें तो योगी हैं वो कितने कितने सालों तक अपने प्राणों को रोक लेते हैं। यौगिक साधना में प्राण को रोक कर और फिर अपने प्राणों को अंदर रखते हुए शरीर का त्याग करना, ये मोक्ष का उपाय माना जाता है, जिसे भीष्म के साथ हुआ। भागवत जी में उसका निरूपण आता है। तो ओवरऑल प्राण और आत्मा ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर प्राणाध्यास के कारण हमें ऐसा लगता है, जीवात्मा को भी ऐसा फील होता है कि प्राण रुक जाएंगे तो हमारा अस्तित्व नहीं रह जाएगा, हम मर जाएंगे। परंतु ऐसा नहीं होता है। ये प्राणाध्यास है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग प्राणों के साथ कनेक्टेड होने की कि हम उसे अपना स्वरूप समझने लग जाएं, ये प्राणाध्यास है। इन दोनों में किसी को कुछ पूछना है तो आगे करते हैं। कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो इतने विषय में। राजा। हाँ राजा, ऐसा क्वेश्चन हो रहा था कि जैसे आपने बताया था कि वर्ण होने के बाद ही, ये जो वर्ण है वो 3rd स्टेप है, तो वर्ण होने के बाद ही जीव को विद्या लग जाती है। तो राजा फिर तुरंत ही वो माया शक्ति का प्रभाव आ जाता है, तुरंत ही ये अध्यास लगने लगते हैं कि ये प्राण मैं हूँ या ये मैं हूँ, ये तुरंत ही हो जाता है राजा। देखो, इसमें ऐसा है कि अविद्या शक्ति का संपर्क तो भगवान तुरंत करवा देते हैं, क्योंकि आनंद अंश तिरोहित होने के साथ ही जीवात्मा को अविद्या लग जाती है। परंतु ये एक मैकेनिज्म है जो तब लगती है, ये वर्किंग नेचर में तब आती है जब जीवात्मा को देह प्राप्त होता है। मतलब हम जब इस संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं और हमारा शरीर हमें मिलता है, उसके साथ इंद्रिय मिलती है, प्राण मिलते हैं, अंतःकरण मिलते हैं, तब वो अविद्या शक्ति जो है वो एक्टिवेट होती है, तब वो वर्किंग में आती है। इंस्टॉल तो वो अविद्या शक्ति तब हो जाती है जब भगवान हमें पैदा करते हैं। जी राजा। जैसे भागवत जी में ये आता है कि गर्भस्तुति का प्रसंग है, 3य स्कंद में, 4th स्कंद में आता है। उसमें जो जीवात्मा है वो जब माता के गर्भ में होती है तो भागवत ये कहता है कि तब जीवात्मा को सब कुछ याद होता है। मतलब भगवान के साथ का अपना संबंध उसे वो भूलता नहीं है, तब उसे याद होता है। तब वो भगवान की स्तुति करता है कि मैं तो ऐसे मांस और खून के खड्डे में पड़ा हूँ और अब मैं बाहर निकलूंगा तो फिर आपको भूल जाऊंगा।
और फिर मैं ऐसा जीव हूँ कि उसके ऊपर आपकी इतनी कृपा है, तो कृपया मुझे आपके पास रखना, बुला लेना, दूर मत करना। ऐसी सब स्तुति जो है वो जीवात्मा माता के गर्भ में रहकर भगवान के प्रति करती है। तो तब तक उसे जीवात्मा को ये सब याद होता है, परंतु जब हम जन्म लेके बाहर आ जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके संसार के सभी संबंधों के साथ हमारा संपर्क होता है, तो ऐसे ऐसे ये सब अध्यास स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, ग्रेजुअली डेवलप होता है ये सब। पर ये एक मैकेनिज्म प्रत्येक जीव के अंदर लग जाती है अविद्या शक्ति की। जी राजा, मतलब वो बालक जो है वो संसार में आया, फिर धीरे धीरे उससे वो चीज एक्टिवेट होने लगी। जब तक वो गर्भ में है, भले उसको देह मिल गया है, उसके पार्ट डेवलप हो गए, पर वो ठाकुर जी से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। और वो बाहर संसार में आने के बाद ये अध्यास करते हैं। हाँ बिल्कुल राजा जी। उत्पन्न हो जाने के बाद फिर जीवात्मा को वो स्मृति नहीं रह जाती है। अब जैसे बच्चों को भी देखो, जब पैदा होते हैं तब तो वो अपने माता पिता के अलावा किसी को नहीं जानते हैं। फिर भाई बहन, दादा दादी, उतने उनकी अवेयरनेस डेवलप होती है। फिर वो धीरे 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 बढ़ती जाती है। स्कूल में आते हैं तो वो एक और कल्चर डेवलप होता है, कॉलेज जाते हैं तो वो और डेवलप होता है। ऐसे करके धीरे धीरे वो सब अविद्या का जो व्याप है, प्रेमाइसिस है, वो बढ़ता जाता है। एक साथ नहीं आ जाता है, सब कुछ ग्रेजुअली आता है। पर ये होना है, ये वो मैकेनिज्म हमारी आत्मा के साथ भगवान ने रखी हुई है। जी राजा, समझ में आया। ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, मतलब ग्रेजुअली उसमें फिर राजा ऐसा बोल सकते हैं ना कि बहुत जब बड़ा हो जाए, एकदम समझदार हो जाए, तो उसमें पूरी अविद्या का वो लग गया है, माया शक्ति का, ऐसा बोल सकते हैं राजा? हाँ होता है वो तो। जी राजा। फुल्ली और राजा डेवलप वो हो जाता मेरा है, अपना है, वो जो ममता और ये सब है, ऐसे वो भी अविद्या के ही कार्य हैं। जी राजा। वो ही सब धीरे धीरे डेवलप होता है। हम पैदा हो जाते हैं, उसके बाद ये सब शुरू होता है, फिर चलता रहता है। जी राजा। હેલો हाँ રાજા, પ્રાણાધ્યાસ પ્રશ્ન હતો કે જીવને પોતે પ્રાણ છે તેવો ભ્રમ થાય છે એવું ડેફિનેશનમાં લખ્યું છે, પણ એકચ્યુઅલમાં આપણે તો એમ થાય છે ને કે આપણે પ્રાણ લઈ છીએ। हमें ऐसा लगता जरूर है कि हम प्राणवायु को ले रहे हैं और उस प्राणवायु के द्वारा हमारा शरीर चल रहा है, परंतु यहाँ प्राणाध्यास का तात्पर्य ये है कि मान लो कि अभी हम सांस रोक दें तो जीवात्मा व्याकुल हो जाएगी कि मैं मर गई। वो फीलिंग हमें ऐसी क्यों होती है कि हम मर गए? हम केयर फ्री क्यों नहीं रहते हैं कि नहीं, जीवात्मा शरीर को छोड़ती है तब हमारी मृत्यु होती है, प्राणवायु के रुकने से मृत्यु नहीं होती है। पर ऐसा डिफरेंशिएशन हमें फील नहीं होता है, हम उन दोनों को एक ही समझ के फील करते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है। जी राजा, ओके। तो राजा यहाँ पे जड़ किस रूप से लेना चाहिए, ये समझ में नहीं आया राजा प्राणाध्यास में। वो जड़ प्राण मतलब जड़ के इसमें आता है राजा, वो कैसे राजा? उत्पन्न होते हैं, पंच महाभूत से ही उत्पन्न होते हैं। अच्छा, हाँ जी राजा। उन्हें देख नहीं सकते इसलिए वो अतीन्द्रिय हैं, अप्रत्यक्ष हैं, परंतु प्राकृत है, जड़ है। अच्छा जी राजा। उनमें जो चैतन्य है वो जीवात्मा के होने के कारण आता है, जीवात्मा के चले जाने पर ये सब कुछ जड़ हो जाता है। मतलब जीव है तब तक उसको कैसे मानते हैं राजा? जीवात्मा जब आती है तब हमारे देह में सचेतनता आती है। जीवात्मा जब हमारा शरीर को छोड़कर चली जाती है तो फिर वो जड़ ही हो जाते हैं, जैसे टेबल कुर्सी है, ऐसे डेड बॉडी नहीं हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। ऐसे फिर तो टेबल में और वो डेड बॉडी में क्या फर्क रह जाता है? अच्छा जी, मतलब ये जो
जिन आंखों से हम देख रहे थे, जो कान अभी तक सुन रहे थे, वो सब कुछ टेबल कुर्सी की तरह नॉन लिविंग ही तो हो जाते हैं। हाँ जी राजा। तो मतलब ये जीवात्मा जो के पृथ्वी जल सब कुछ में चैतन्य आता है, जीवात्मा चली जाने पर ये सब कुछ जड़ हो जाते हैं। इसलिए वास्तविकतया ये जड़ है, आत्मा के कारण उनमें सचेतनता है। अच्छा जी राजा। राजा, हाँ, एक फैक्ट तो ये भी है, जो आपने जो बात समझे वो तो ठीक है प्राणाध्यास के संदर्भ में, पर ये अपने को आत्मा के रिलेशन में लेना पड़ेगा ना सारे जो अध्यास है, क्योंकि हाँ बिल्कुल योगी की बात अलग है, पर फैक्ट भी यही, जो मैकेनिज्म है वो ऑपरेटिव है, क्योंकि सब सारे ये करण अवेलेबल है। पर जब मूल स्वरूप अपना आत्मा का है, वो वाकई रिलेशन में सब आ जाएगा ना, अध्यास सब। हाँ हाँ हाँ, रिलेटिवली। या राजा अंतःकरण अध्यास में एक मिनट, योगी का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया था कि हमें ये समझना चाहिए कि हम इन अध्यासों के कारण ऐसा फील करते हैं कि ये सारी मैकेनिज्म हमारी आत्मा की अपनी है, परंतु अगर योगी अपने प्राणों को रोक कर भी जिंदा रह सकता है तो उसका अर्थ ये है कि आत्मा और प्राण ये दोनों अलग अलग हैं। इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल दिया। ठीक है राजा, बराबर। हाँ स्नेहा, मतलब राजा योगी लोग वो लोग अपने श्वास को रोक के रह सकते हैं राजा, वो कैसे पॉसिबल? अरे हजारों सालों तक रह सकते हैं। ओहो, अच्छा जी राजा। राजा मेरे यहाँ पे एक क्वेश्चन, भागवत जी में ध्रुव जी का प्रसंग एक बार पढ़ लेना। हाँ जी राजा। बोलो। અંતઃકરણ અધ્યાસને કારણે જીવ પોતાને સતત કર્મોનો કરતા તેમજ સતત ફળોનો ભોગતા સમજવા માંડે છે। तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये लेना चाहिए राजा कि वो जो भी करता है वो खुद से ही करता है, उसका फल भी जो है वो खुद से ही मिलता है, ऐसा समझना चाहिए राजा यहाँ पे। मतलब इच्छा मेरे मन को हो रही है, मन मुझसे अलग है, तो ये मेरी इच्छा कैसे हुई? परंतु जीवात्मा को अध्यस्त होने के कारण ऐसा लगता है कि ये इच्छा मुझे हो रही है। इसलिए जब भी हम, इसमें मैकेनिज्म ऐसी है कि सबसे पहले मन में इच्छा होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने हमारे सामने कोई वस्तु देखी, अब वो देखकर जीवात्मा मन को पहले ऐसा होता है कि ये मुझे चाहिए, ये मन की इच्छा है, ये इच्छा तो मन पैदा करता है। जीवात्मा को ऐसा लगता है कि मन की इच्छा है वो मेरी इच्छा है। अब फिर उसे पाने के लिए मान लो कि हमने चोरी कर ली, तो जीवात्मा को ऐसा लगेगा कि मैंने चोरी कर ली है। अब जो मैं कर रही हूँ उसका फल तो फिर मुझे ही भुगतना है। तो ये प्रॉब्लम है कि जीवात्मा वास्तविकतया कुछ भी नहीं करती है, परंतु इन प्राण को, मन को, इंद्रिय को, शरीर को अपना स्वरूप मानने के कारण जीवात्मा को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है और ये वो अपनी अहंता से करती है। इसीलिए फिर जीवात्मा को उसके जो भी अच्छे बुरे फल होते हैं उन्हें भुगतना भी पड़ता है। हाँ राजा। जीवात्मा अगर ऐसा सोचती कि नहीं इसे मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो जीवात्मा को फिर उन सब के साथ उसका अच्छा बुरा कुछ भी भुगतना भी नहीं पड़ता है, जिसे हम जीवन मुक्ति कहते हैं। आगे आएगा अभी वो प्रश्न। अच्छा, चार अभी आपने कौन से बोले? प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। प्राण, अच्छा प्राण के प्रकार नहीं, यही राजा सदासत वासना में आपने बोला ना, ये चार जो प्रकार है वो मन से किए, मतलब मन से इच्छा होती है और उसी के कारण उसको मतलब ये आपने अभी बोला ना राजा। हाँ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, जी जी राजा। तो अंतःकरण अध्यास की पहली पंक्ति में लिखा हुआ ही है।
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों के कलेक्टिव फॉर्म को अंतःकरण कहा जाता है। हाँ जी राजा, आगे बताया ना, 4 समूह, इसको अंतःकरण कहा जाता है। हाँ हाँ राजा। और कुछ पूछना है? ठीक है। तीसरा है इंद्रियाध्यास। इंद्रियाध्यास का अर्थ ये है कि हमारी सेंसरी ऑर्गन्स, उसके 2 प्रकार होते हैं, कर्मेंद्रिय होती हैं और ज्ञानेंद्रिय होती हैं, 5-5 मिलके 10 हैं। और इनका राजा जो है उसे मन को माना जाता है, वो मन है, मन इनका राजा है, इसलिए एकादश इंद्रिय, 11 इंद्रियां ऐसा कहा जाता है। अब वो जीवात्मा को इंद्रियाध्यास के कारण भी ऐसा लगता है कि मेरी आंखें देख रही है तो ये मैं देख रही हूँ, मेरे कान सुन रहे हैं तो ये मैं सुन रही हूँ, या मेरे आंखों को कुछ हुआ तो ये मुझे हुआ। तो वो इंद्रियां को जो भी फीलिंग होती है वो जीवात्मा को अध्यस्त होने के कारण ऐसा लगता है कि ये सब मुझे हो रहा है। इसलिए हाथ में कट गया तो आत्मा को ऐसा लगता है कि मुझे दुख हो रहा है, शरीर को सुख हो रहा है, इंद्रियों को सुख हो रहा है, तो जीवात्मा को लगता है मैं सुखी हूँ। तो वो रिलेट करने के कारण जीवात्मा इंद्रियों संबंधी सुख दुख को भी अपने सुख दुख मान लेती है। उसके बाद देहाध्यास है, अर्थात जिस स्थूल शरीर को हमने प्राप्त किया है वो स्थूल शरीर का अध्यास हो जाने के कारण जीवात्मा को ऐसा लगता है कि ये शरीर मेरा है, और शरीर के साथ होने वाले जो भी, किसी ने हमें गाली दे दी, आत्मा को ऐसे बुरा लगेगा कि मुझे हुआ ये, हमें हमारी किसी ने प्रशंसा कर दी तो आत्मा को लगेगा ये प्रशंसा मेरी प्रशंसा हुई। तो वो शरीर के साथ जो कुछ भी होता है वो सब कुछ जीवात्मा को ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ हो रहा है। और इन चारों के परिणामवश कलेक्टिव फॉर्म में रिजल्ट ये आता है कि जीवात्मा ये भूल जाती है कि वस्तुतः तो मैं ब्रह्म का चिदंश हूँ, और न तो प्राण मेरा स्वरूप है, न अंतःकरण मेरा स्वरूप है, न मेरा इंद्रिय मेरा स्वरूप है, और न शरीर मेरा स्वरूप है। वस्तुतः तो मैं ब्रह्म का अंश हूँ, और भगवान का ये चिदंश का, चैतन्य का अंश होना, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। ये बात जीवात्मा भूल जाती है और भगवान से दूर हो जाती है। फिर हम इन मटीरियलिस्टिक सब्जेक्ट्स के करीब हो जाते हैं और भगवान से, जो हमारे कारण हैं, जिनसे हम पैदा हुए हैं, उनसे हम दूर हो जाते हैं। ये उसका आफ्टर ऑल परिणाम आता है। इसलिए हमारी जो करंट कंडीशन है हम सभी की, उसमें हम अपने स्वरूप को ऐसा नहीं समझते हैं कि मैं भगवान का चिदंश हूँ, पर हमें ऐसा लगता है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरा ये नाम है, मैं मेरी ये फैमिली को बिलोंग करता हूँ, या ये मेरा देश है, वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी जो फीलिंग है वो वास्तविक नहीं है। आत्मा को इन सबसे कोई रिलेशन नहीं है। वस्तुतः आत्मा भगवान का चिदंश है, और ये सारी फीलिंग भी हमें सिर्फ हमारे कर्तव्यतया होती हो तब तो ठीक है, परंतु उनके सुख दुख भी हमें अपने सुख दुख लगने लग जाएं, हमारी ड्यूटीज हैं उन्हें फुलफिल करना है, वो सब अलग बात है, परंतु इन सब में हम भगवान को भूल जाते हैं। उनके प्रति हमारी जो ड्यूटी है उसे हम नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं, और वो हमारी प्रायोरिटी नहीं बनती है। हमारे शरीर को का पोषण करना हमारी प्रायोरिटी बन जाती है, हमारे परिवार के लोग हमारी प्रायोरिटी बनते हैं, शरीर के सुख दुख का ध्यान रखना, ये सब हमारी प्रायोरिटीज में आ जाता है। इसलिए जीवात्मा बंध जाती है और भगवान से दूर चली जाती है। ये पूरा सिनारियो है जीवात्मा का। अब इस विषय में अगर कुछ प्रश्न हो तो हम उन्हें कल डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर आगे पढ़ेंगे। जिसका भी क्रम हो वो आगे के विषय को देख लेना और आज के विषय को समराइज भी कर देना।